ठीक है, today's topic is about reproduction. So what do you mean by the word reproduction? It can be asked for 1 mark question, whether it may be MCQ type of question or a 5 mark type of diagram based question. Living organism. Okay, so it is considered to be the living one of the life processes which helps to give rise to the new offspring of same species. In order to maintain that existence of that species on the earth surface, this process is considered to be the one of the vital processes of living organism. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम स्वतः सारखा स्वतःचीच कॉपी करून काय करू शकतो, स्वतः सारखाच ऑर्गॅनिझम जन्माला घालू शकतो. याच्याने त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा काय फायदा आहे, त्याची कम्युनिटी पृथ्वीच्या सरफेस वरती मेंटेन राहते. समजलं? पक्का? ओके. सो रिप्रोडक्शन कॅन बी सीन इन ऑल टाइप्स ऑफ organism. Living world is divided into plant kingdom, animals kingdom and microorganisms class. Okay, those are the 3 categories in which a living world has been divided or the classified. Okay, so plant is having a different type of reproduction mechanism, whereas animals are having different type of reproductive system, and microorganisms are having their own different type of mechanism. Got it? So in this chapter we are broadly focusing on the reproduction in plants. Okay, so what do you mean by the plant? Producer of the living world. Okay, next one. It is considered to be the living organism who lack the facilities of locomotion. उनके पास लोकोमोशन वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसी है, मॉडिफाइड तरीके की है. वी ह्यूमन, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एवरीवन यूज्ड टू क्रॉल, वॉक और क्या बोलते उसको, हाँ क्रॉल हो गया, वॉक हो गया, कहाँ पे कर सकते हैं, अर्थ सरफेस पे कर सकते हैं. बट प्लांट्स आर लाइक टू डेवलप और ग्रो इन वर्टिकल डायमेंशन. प्लांट को हमेशा कैसे बढ़ते देखते हैं, ऐसे. और ह्यूमंस का जो मूवमेंट या फिर लोकोमोशन जो भी होता है वो कैसे डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल वे में होता है. आई बात ध्यान में? ओके. सो if you talk about the sexual reproduction in flowering plants, there are 2 types of or the 2 modes of reproduction. One is asexual, another one is sexual. Asexual means what? How many parents are required? A single parent is sufficient to give birth or to give rise to the new daughter cell. Got it? Single or one parent is sufficient. In which, if I talk about the sexual type of reproduction, both male and female parent are required or contributes equal contribution of chromosome genetic material to give shape or to define the traits of the new offspring. बच्चे में जो भी ट्रेट्स आएंगे, कैरेक्टर्स आएंगे, वो डिसाइड करने के लिए दोनों पेरेंट्स अपने अपने बराबर कैरेक्टर्स क्या करते हैं,
कंट्रीब्यूट करते हैं। कौन से टेक्निक में? सेक्सुअल टाइप ऑफ टेक्निक में। आई बात ध्यान में? दोज आर द टेक्निक विच आर यूज्ड इन बोथ टाइप ऑफ किंगडम्स, वेदर इट मे बी अ प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। आई बात ध्यान में? दोनों किंगडम्स में सेम ही टेक्निक यूज होती है। कुछ असेक्सुअल टाइप ऑफ मोड को फॉलो करते हैं तो कुछ सेक्सुअल टाइप ऑफ मोड को फॉलो करते हैं। समझी बात? ओके। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, स्पेशली वी आर टॉकिंग द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्यों? बिकॉज फ्लावर इज कंसिडर्ड टू बी द reproductive organ or the reproductive system has been installed in the flowering part of the plant. जैसे if I talk about the humans में reproductive system कहाँ पे install की गई है? At the lower abdominal region. वैसे ही plants में reproductive system कहाँ पे install की गई है? In the flower of that plant. ठीक है, तो इसलिए जो भी रिप्रोडक्शन सीखना है कहाँ पे सीखेंगे? सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में सीखेंगे। बट फिर असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहाँ पे यूज होता है, या फिर कौन से प्लांट्स कैटेगरीज को फॉलो करते हैं? नॉन फ्लावरिंग। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से टेक्निक को फॉलो करते हैं? असेक्सुअल टाइप ऑफ मोड को फॉलो करते हैं। अभी उसमें कौन से आएंगे फिर टेक्निक्स? बडिंग, okay, so those are the techniques which are the part of the asexual type of reproduction method. So first is budding, in which a definite or the particular type of bird used to arise or take birth on the parent mother body. Example of hydra, हाइड्रा के ऊपर, ठीक है, ऐसा एक बर्ड आएगा, बेबी बर्ड। ओके, now he will suck or he will absorb all the nutrients from the parent hydra unless and until he becomes matured hydra. Once he become a adult type of hydra, it will detach from the parent hydral body. Got it? You can take the example of your hand or palm also to explain that design. Okay, if this is the design of the hydra and if the small bird used to arise on the parent hydral body, slowly it will develop into the adult type of hydra, and automatically once it get detached from the parental hydral body, it will be considered as the new baby hydral body. समझी बात? Now this technique is considered to be the budding technique. इसको budding technique क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि पैरेंट बॉडी पे एक छोटा सा बर्ड आपको दिखाई देता है। आई बात ध्यान में? एग्जाम्पल के साथ इसको रिप्रेजेंट करना अगर ये पेपर में आया तो, ठीक है, वेदर इट मे बी फॉर 1 mark, 2 marks or 3 mark, it is compulsory or it is expected that you have to draw the diagram of budding technique, budding type of reproduction in hydra. Got it? Next one is your regeneration. Re means repeating the same process and generation means to give birth from the previous body. अभी रीजनरेशन में क्या होगा? आपके पास एक पैरेंटल बॉडी ऑलरेडी रहेगी। एग्जाम्पल प्लानेरिया, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द प्लानेरिया, तो प्लानेरिया ऐसा है कि जिसको आप जितना उसका पार्टीशन करोगे सेगमेंट से, दैट ईच पार्ट विल
develop its tail, head and rest of the part by its own. समझा? पक्का? ओके. रीजनरेशन. नेक्स्ट समझ लो निवेदिता. हाँ. नेक्स्ट वन इज फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंट मीन्स having the threads removing from the parental body. Spirogyra. ठीक है. Spirogyra is having its thready body structure. At the maturity or at the adult stage, it used to remove its thread from each other, and single thread again develop into the mature spirogyral body. थ्रेड स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट थ्रेड नोड में से क्या होते हैं, रिमूव होते हैं. अभी ये जो छोटे छोटे पैचेस है वो खुद में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं और फिर से वो न्यू स्पाइरोगैरल बॉडी का शेप ले लेते हैं. समझी बात? नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. राम, लक्ष्मण, सीता. ठीक है. दोज आर द फंडामेंटल बॉडी पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट which follows the technique of vegetative type of reproduction. If this is the plant, which type? Roots, stem and leaves. Ram, Lakshman, Sita. ठीक है. Those are considered to be the fundamental body parts of the plant who participate in the vegetative type of propagation. If any plant used to propagate मतलब अपनी प्रजाति को बढ़ाना. कैसे बढ़ाएगा वो? अगर एक पैरेंटल बॉडी में से आप रूट्स कलेक्ट करो और वो रूट्स अगर हर जगह पे उसको इम्प्लांट करो, जहां जहां पे आप उसको इम्प्लांट करोगे वहां पे आपको सेम स्पीसीज डेवलपमेंट आपको देखने मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, रूट्स का एग्जाम्पल, रूट्स कैरेट, रेडिश, जिंजर, गार्लिक, देन अनियन. ठीक है. ये सारे बल्ब्स है. इन बल्ब्स को जहां जहां पे लगाओगे, इन रूट्स को जहां जहां पे लगाओगे, आपको वैसा वैसा डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. देन कम्स टू दी स्टेम. स्टेम से होने वाले प्रोपोगेशन, रोज, देन sugar cane, grapes, mostly the vines and the flowering, some of the flowering plants who used to propagate or who don't bear the flower, don't bear the fruit. ऐसे प्लांटिंग पौधे या फिर फ्लावरिंग पौधे जिनका फ्लावर स्टेज के बाद फ्रूट स्टेज में कन्वर्जन नहीं होता, उसमें से लगभग कुछ ऐसे होते हैं जो कौन से टेक्निक को फॉलो करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम टेक्निक को फॉलो करते हैं. नेक्स्ट वन इज द लीव, ब्रायोफाइलम एंड स्नेक प्लांट. Two are the examples of the leaves. If you plant that leaf into the soil medium, then that plant or that leaf will arrive into the form of the new baby plant. उस पत्ते को अगर आप सॉइल मीडियम में डालोगे तो वो पत्ता खुद बेबी प्लांट्स नोड के जगह से वहां पे आपको क्या देखने मिलेगा, नया प्लांट देखने को मिलेगा. आई बात ध्यान में. तो दीज आर ऑल अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. एंड लास्ट वन इज द स्पोर फॉर्मेशन. इट इज द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन or sexual type of reproduction in microorganisms, especially fungus. Fungus are the plant. फंगस प्लांट ही है, लेकिन फिर भी उनकी कैटेगरी अलग क्यों की है? बिकॉज इनकी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है. क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट को कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है. प्लांट्स के लीव्स को ग्रीन कलर देता है. अब इनमें क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं इनकी सेल के पास,
तो इनके पास ग्रीन कलर है ही नहीं, इसलिए इनको क्या किया है, अलग कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है। तो फंगस में हम देखते हैं कि इसका जो प्रोपोगेशन है वो कौन से टेक्निक से होता है, स्पोर फॉर्मेशन से होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्पोर? A ball, a transparent ball full of germinating cells used to get matured, and after mature it used to get burst off, and once it get burst off, all this spore, all that mature cells are used to fall on the nutritive medium surface। जैसे ही वो गिरेंगे फिर से वहां से बेबी फंगल बॉडी आपको डेवलपमेंट होने में दिखेगी। आई बात ध्यान में। सो दिस इज ऑल अबाउट द असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, इन 9th क्लास यू हैव बीन सीन कि ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर बियर नहीं करते, ऐसे प्लांट्स को कौन सा प्लांट बोला जाता है, ऐसे फैमिली को कौन सी फैमिली बोला जाता है, प्लांट फैमिली? नो, एंड्रोशियम, कुछ भी। हम्म, ठीक है। 9th के पास साइंस वाली बुक है? देखो, टेक्स्ट बुक। तुमने वो स्टेट वालों की। Phanerogams, cryptogams and phanerogams. Cryptogams and phanerogams. So these all techniques are followed by the cryptogams type of plant, जिसमें फ्लावर्स आते ही नहीं है। समझी बात? और अभी हम टेक्निक देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी phanerogams टाइप ऑफ प्लांट्स, कि जिनमें फ्लावर्स लगते हैं या फिर डेवलप होते हैं। समझी बात? अब यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट्स है कि जो फेनोरोग्राम्स है, लेकिन कौन सी टेक्निक को फॉलो करते हैं, असेक्सुअल टाइप ऑफ टेक्निक को फॉलो करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्रिप्टोगैम्स प्लांट्स जो है असेक्सुअल टाइप ऑफ टेक्निक को फॉलो करते हैं, and majority of the phanogams follow the technique of asexual type of reproduction because they bear flower, and in that flower a developed reproductive system is installed। आई बात ध्यान में? ओके। सो अभी फ्लावरिंग प्लांट में जाना है तो सबसे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। क्या बोला? प्रोटाइल्स? पूरा सेंटेंस पर प्रोटीन्स होगा, पूरा सेंटेंस पर। भगवान,
So this is the morphology of the flower. Now we are going to study the morphology of the flower. Morphology मतलब क्या? एक होता है एनाटॉमी, एक होता है मॉर्फोलॉजी. एनाटॉमी मतलब उसको बाहर बाहर से देखना, और मॉर्फोलॉजी मतलब उसको चीरफाड़ करके डिसेक्शन टेक्निक या फिर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूशनल टेक्निक से उसको देखना. ठीक है. अब ये हो गया इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. दिखने में कैसा दिखेगा? कुछ पार्ट कलरिश दिखेगा, कुछ पार्ट ग्रीनिश दिखेगा, कुछ पार्ट क्या बोलते हैं उसको, वेरी स्टिकी बोलो, या फिर उसके बाद में पेटल्स जो है बहुत ही नाजुक दिखेंगे, फ्रजाइल दिखेंगे, और कुछ टेक्निक है विच विल लुक वेरी स्टबन एज द बेस ऑफ द फ्लावर. आई बात ध्यान में? हाँ. अब इसको अगर मैं करूं डिसेक्शन तो दिखने में ये कैसा दिखता है? काय म्हणतात त्याला? याला करोला काय? करोला कशाला म्हणतात? This is considered to be the pistil. Okay. ह्या तिघांना, तीन पार्ट्सला मिळून कंबाईनली काय म्हणतात? पिस्टिल. ठीक आहे. पण तू सांगितलेलं उत्तर म्हणजे काय? ह्या पूर्ण भागाला, ह्या पूर्ण अवयवाला काय म्हणतात? मेल रिप्रोडक्टिव्ह बॉडी. जे की काय? अँड्रोशियम. टोटली हा कंबाईन पिस्टिल. हो. अरे हो, बरोबर आहे. SCE स्पेलिंग काय? GYNO NOE. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज दी anther filament. This will combinedly known as androCIUM. तुला काय दिल्या निवेदिता? स्टेमन. बघा आता ते दुविधामध्ये काय राहू नका. ठीक आहे. दोन पद्धतीने यांचे नावं दिलेले आहेत. ठीक आहे. हे नाव स्ट्रक्चर वाईज आहे, हे नाव फंक्शन वाईज आहे. समजलं? स्ट्रक्चर दिसताना हे जे दिसतं, कधी येलो कलरचं दिसेल, कधी ऑरेंजिश रेडिश कलरचे वेगवेगळे तुम्हाला पोलन दिसतील. ठीक आहे. तर याला काय म्हणायचं? स्टेमन. इफ यू टॉक अबाउट दी पार्ट. ठीक आहे. आणि याला म्हणणार अँड्रोशियम. का? कारण यांचं फंक्शन कोणतं आहे? मेल गॅमेट्स कॉन्ट्रीब्यूट करायचं यांचं फंक्शन आहे. तर हे नाव स्ट्रक्चर प्रमाणे आहे आणि हे नाव त्याच्या फंक्शन प्रमाणे. ठीक आहे. सिमिलरली पिस्टिल, दिसायला पिस्टिल सारखं दिसतं ना. ठीक आहे. म्हणून स्ट्रक्चरल याचं नाव आहे पिस्टिल आणि फंक्शनल याचं नाव आहे गायनोशियम. समजलं? क्लिअर? एनी डाऊट? इथे तुम्हाला बघायला मिळतात, इथे तुम्हाला बघायला मिळतात पोलन ग्रेन. ठीक आहे. याला जर तुम्ही झूम आउट केलं, इफ यू झूम आउट दोज,
इफ यू झूम आउट है तुझ्या इंग बरं त्याच्यात. If you zoom out those structure, it will look like a cell. ठीक आहे. आता हे जे सेल आहेत हे काय करतात, काय कॉन्ट्रीब्यूट करतात, मेल कॅरेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करतात. फ्लावर मध्ये सुद्धा दोन व्हरायटीज आहेत, मेल फ्लावर अँड फिमेल फ्लावर. पण ह्या दोन्ही जर ऑर्गन्स जर एकाच फ्लावर मध्ये असेल तर या अशा फ्लावरला बायसेक्शुअल फ्लावर सुद्धा म्हटल्या जातं. युनिसेक्शुअल अँड बायसेक्शुअल अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. इफ आई टॉक अबाउट दी पपाया, पपाया में कुछ प्लांट्स को पपाया लगती है, कुछ प्लांट को सिर्फ फ्लावर आते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन पपाया में उसका कन्वर्जन कभी भी होता नहीं है. क्यों? दैट फ्लावर आर मेल टाइप ऑफ फ्लावर हु ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स देयर पोलन, ठीक है, फॉर द रिप्रोडक्शन इनटू द प्लांट विच बियर द फीमेल टाइप ऑफ फ्लावर. समझी बात? ठीक आहे. आता मग कांदे पोहे अति महत्वाचा कार्यक्रम, त्याच्याशिवाय गाडी आपली समोर जाऊ शकत नाही. बघ आला का? ठीक आहे. So transfer of those pollen grain or the male gametes from the anther to the stigma of the pistil. ठीक है. ये जो ट्रैवलिंग का ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं पॉलिनेशन. कामातून गेला आहे हा, झटकला तर इंक निघते ना त्याची. समझला? पॉलिनेशन. पॉलिनेशन मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कंसिडर्ड टू बी दी 7 से कम नहीं होना तो फिर अच्छी बात है. मुंह मत लटकाओ, शर्म इसको आनी चाहिए. ठीक है, समझी इतनी बात? पक्का? पक्का. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कंसिडर्ड टू बी दी पॉलिनेशन. सुजल, समजलं का? पक्का. आता हे पॉलिनेशन मध्ये 2 टेक्निक्स असतात. कोणत्या कोणत्या? क्रॉस पॉलिनेशन अँड सेल्फ पॉलिनेशन. काय याचं डेफिनेशन काय किंवा डिफरन्स काय याचा? कुठलाच कामाचं नाही हा पण. As per the name suggest, क्रॉस मीन्स व्हाट? यहाँ का एंथर जब ट्रैवल करके दूसरे फूल के दूसरे झाड़ के दूसरे फूल पे जाके स्टिग्मा पे स्टिक होता है, तो ऐसे प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. चुलत मामाची पोरगी म्हणजे क्रॉस पॉलिनेशन. पण जर सख्या मामाची मुलगी असेल तर सेल्फ पॉलिनेशन. समजलं? म्हणजे काय? पोलन ग्रेन फ्रॉम सेम फ्लावर स्टिक ऑन द सेम फ्लावर स्टिग्मा, या फिर स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑन सेम प्लांट. अगर एक फूल यहाँ पे भी है, एक ही पेड़ है, ये अलग पेड़ है, दोनों केस स्वतःच्या काय म्हणताय स्वतःच्या फ्लावर वरती त्याचं ट्रान्सफर होणं किंवा मग एका झाडावरती असलेल्या फ्लावर वरती त्याचे पोलन ग्रेन्स जाऊन स्टिक होणं, दोन्ही टेक्निकला काय म्हणतो आपण? सेल्फ पॉलिनेशन म्हणतो. पण एका झाडावरच्या फुलामध्ये असणारे अँथर्स पोलन ग्रेन्स जर दुसऱ्या झाडावरच्या फुलावरती असलेल्या स्टिग्माला जाऊन जर स्टिक केले तर त्या प्रोसेसला म्हणतो आपण क्रॉस पॉलिनेशन.
गॉट इट, पक्का। अब पॉलिनेशन के बाद फिर होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टेक्निक इज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन? What is the definition of fertilization? यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, दो जिस्म एक जा, ठीक है, मतलब अलग अलग बॉडी से अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ आए हुए सेल्स जब यूनियन होते हैं और सिंगल क्या तैयार करते हैं, डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल, त्याला काय म्हणतो, जायगॉट, ठीक है। तो सिंगल सेल जो तैयार करते हैं वो टेक्निक या फिर वो मेथड को कौन सी मेथड बोला जाता है, फर्टिलायझेशन मेथड बोला जाता है। ते राहू दे, त्याच्याने काहीही होत नाही, हे जर सुटलं तर याची परत रिव्हिजन होणार नाही, ठीक आहे। त्याला म्हणतात फर्टिलायझेशन। व्हॉट डू यू मीन बाय द फर्टिलायझेशन? युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट टू फॉर्म अ सिंगल झायगोटल सेल, ज्याच्यामध्ये 50% कॅरेक्टर्स कोणाचे असतील, फादर पेरेंट, 50% कॅरेक्टर्स कोणाचे असतील, मदर पेरेंट, ठीक है। नाउ इट विल गेट डिवाइडेड इनटू मल्टीपल, नाउ इट विल डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेल by the process of meiosis and माइटोसिस। अभी मेयोसिस कब होता है, जब इनका यूनियन होता है और जब कैरेक्टर सिलेक्शन की स्टेप आती है तब कौन सी स्टेप होती है आपको, मेयोसिस। वंस इट हैज बीन फॉर्म इनटू दैट जायगोट, अभी सिर्फ उसको क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है, तब कौन सी टेक्निक यूज होती है, माइटोसिस। आई बात ध्यान में, माइटोसिस, a single parental cell will undergo the process of cell division to give rise to the daughter two cell. अशीच डेफिनेशन लिहायची आहे, काय सांगितलं मी, a parental cell undergoes cell division, a parental cell undergoes cell division to give rise to new two daughter cell is called as mitosis. नाटक करू नको सुचल, पूर्ण डेफिनेशन सांगून झाली आहे, आता राशीच्या बुकामधनं बघ आणि लिहून घे, ठीक आहे, रिपीट करायचा स्टॅमिना माझ्यात नाही। नेक्स्ट इज द मेयोसिस। A single cell undergoes cell division आ रहे तुम धीरे धीरे अभी कवरेज में, है ना। माइटोसिस मेयोसिस मतलब अगले साल की तैयारी इस साल से ही चालू हो गई है, और अगर तुम इसी साल में अगर नजरअंदाज करोगे तो अगला साल कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं, ठीक है। अंडरगो सेल डिविजन by the method of meiosis 1 and meiosis 2, mitosis 1 and mitosis 2। मेयोसिस मध्ये दोन स्टेजेस असतात, मायटोसिस 1 आणि मायटोसिस 2। नाही माहिती, त्याच्यात आणि याच्यात काय फरक आहे, ह्या डेफिनेशन मध्ये आणि ह्या डेफिनेशन मध्ये काय फरक आहे, याच्यात एकाचे दोन तुकडे होतात,
याच्यात एकाचे दोन दोन वेळा तुकडे होतात. समजलं का? म्हणून ऍट द एंड रिझल्ट किती यांचा मिळतो आपल्याला? अ सिंगल सेल यूज टू गेट डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल्स. ठीक है. नाउ सीक्वेंस ऑफ सेल डिवीजन कहां से कहां तक होती है? सीक्वेंस ऑफ सेल डिवीजन दिस इज दिस सेल सायटोप्लाझ्मा असं सगळं ते ऑर्गॅनिल्स बॉडी हे आहे आणि मधामध्ये कोण आहे? न्यूक्लियस आहे. ठीक आहे. मग आता याचं डिव्हिजन होत असतं ना. डिव्हिजन कसं होतं? आतून बाहेर होतं की बाहेरून आत होतं? आतून बाहेर. एवढं लक्षात ठेवायचं, घर जेव्हा आपण तुटतं ते आतून बाहेरून तुटतं, बाहेरून आत कधीही तुटत नाही. इफ यू सी एनी हाउस हैविंग इट्स बंटवारा, किसी घर का अगर बंटवारा हुआ हुआ देखा होगा तो वो बंटवारा हमेशा दीवारों से लोगों तक नहीं आता, उसमें रहने वाले लोगों से दीवारों तक ही जाता है. सिमिलरली सेल डिवीजन स्टार्ट्स विथ cytokinesis to karyokinesis. समझ? साइटो में सबसे पहले साइटोप्लाज्मा टूटेगा, बंटवारा होगा. आधे माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारे, आधे माइटोकॉन्ड्रिया मेरे, आधा साइटोप्लाज्म तुम्हारा, आधा साइटोप्लाज्म मेरा, आधे वैक्यूल्स तुम्हारे पास, आधे वैक्यूल्स हमारे पास, आधे गोल्जी कॉम्प्लेक्स तुम्हारे पास, आधे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमारे पास. ये सब होने के बाद फिर डिवीजन किसका चालू हो जाएगा? सेल वॉल और अंदर हुई सेल मेम्ब्रेन का, लास्ट में. ठीक है. 3 मार्क्सला क्वेश्चन येऊ शकतो. What is mitosis and what are the steps of mitosis? The 1 marks definition ला लिहायचं. सेकंड पॉइंट मध्ये 2 स्टेजेस लिहायचे, सायटोसायनासिस अँड कॅरियोकायनासिस. थर्ड स्टेज मध्ये त्याचे स्टेप्स लिहायचे. कशाचे? कॅरियोकायनासिस. कॅरियोकायनासिस 4 स्टेप मध्ये होते. कोणतं? मेटा ॲनाटिलो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज. PMAT. ठीक है. पैथोलॉजिक लक्षात राहील, लक्षात राहते. PMAT. ठीक है. You can also take the logic at PM at Karnataka. PM at Karnataka. Prophase, metaphase, anaphase, telophase are the 4 steps of karyokinesis. समझा? पक्का? Shall we move or you need rest? Move. I need rest. पाणी ब्रेक. ठीक आहे. तोपर्यंत रिवाइज करा. पुस्तकामध्ये कुठला टॉपिक सुटलाय का आणि तुम्हाला कुठे पाहिजे का ऍड ऑन ते बघा.
फ्रॅक्शन कुठे? हे check करूया.